معافی ملنے کے بعد جھجر سنگھ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی۔ جھجر سنگھ کو شبہ تھا کہ اس کی بیوی درپردہ طور پر اس کے بھائی ہردور منگ سے مل گئی ہے۔ جھجر سنگھ نے بڑی خاموشی سے اپنے بھائی ہردور سنگھ کو اعتماد میں لیا اور اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی بدکاریوں سے واقف ہے۔ ہردور سنگھ اپنے بھائی کو احمق سمجھ کر سازش کا نیا منصوبہ ترتیب دیتا رہا۔ ایک دن جھجر سنگھ نے اپنے غدار بھائی کی بڑی پرتکلف دعوت کی۔ اس دعوت میں دونوں بھائیوں کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ جھجر سنگھ نے اپنے خدمتگاروں کے ذریعے بڑی رازداری کے ساتھ کھانے میں زہر ملوا دیا تھا۔ پھر یہی زہر آلود کھانا ہردور سنگھ کے سامنے رکھا گیا۔ ہردور سنگھ اس راز سے بے خبر تھا کہ اس کے خلاف بھی کوئی ہولناک سازش کی جا سکتی ہے۔ ہردور سنگھ اسی بے خبری کے عالم میں جی بھر کے کھانا کھاتا رہا۔ جھجر سنگھ نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے زہر آلود شراب کا بھی اہتمام کیا تھا کہ اگر کسی طرح ہردور سنگھ زہر آلود کھانے سے بچ جائے تو زہر آلود شراب اس کا کام تمام کر دے۔ آخر وہی ہوا۔ ہردور سنگھ نے کھانے کے بعد خوب سیر ہو کر شراب پی اور تھوڑی دیر بعد ہی زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آخری لمحات میں ہردور سنگھ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی ہردور سنگھ نے ضیافت کے کمرے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر نشے کی زیادتی کے سبب لڑکھڑا کر گر گیا۔ ہردور سنگھ کو 3 بار خون کی قے ہوئی اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ جھجر سنگھ نے اپنے بھائی کی لاش پر کئی بار زوردار ٹھوکریں ماری اور شدت جذبات میں چیخ کر کہا، جو لوگ کسی کے اعتماد کا خون کرتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ جھجر سنگھ نے اپنے بھائی ہردور سنگھ سے اس کی شرمناک سازش کا انتقام لے لیا تھا، مگر جب یہ خبر عام ہوئی کہ جھجر سنگھ نے ہردور سنگھ کو زہر دے کر ہلاک کیا ہے تو قبیلے کے لوگ غضبناک ہو گئے۔ شاہجہاں کی حمایت کے سبب بندیلا قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد جھجر سنگھ کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے، مگر پوری قوم کی نظروں میں وہ ایک لعنت زدہ انسان بن گیا۔ آج بھی بندیلا قبائل میں جھجر سنگھ کو شیطان کا چیلا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہردور سنگھ کو شہید اور دیوتا کہہ کر پکارتے ہیں۔ بندیلوں کی بغاوت فرو کرنے کے بعد شاہجہاں دارالحکومت کی طرف لوٹ آیا اور اپنی ساری توجہ دکن کے معاملات پر مبذول کر لی۔ خانِ جہاں کو دوبارہ دکن کی گورنری پر بحال کرنے کے بعد شاہجہاں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ بالا گھاٹ پر قبضہ کر لے، مگر خانِ جہاں نے اس حکم کی تعمیل میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ مجبوراً شاہجہاں نے مہابت خان کو دکن کا گورنر بنا دیا۔ اگرچہ خانِ جہاں کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود شاہجہاں نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی، لیکن وہ آگرہ میں درباری ماحول سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن خانِ جہاں کے لڑکے کو یہ اطلاع ملی کہ اسے اور اس کے باپ کو بہت جلد زنداں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر خانِ جہاں نے دربار میں حاضر ہونا بند کر دیا اور آگرے سے فرار کی تدبیریں سوچنے لگا۔ 2000 افغان سپاہی خانِ جہاں کی حفاظت پر مامور تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا۔ جب شاہ جہاں نے اس کی غیر حاضری کو محسوس کیا تو اپنے ایک قاصد کے ذریعے اس کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں خانِ جہاں نے اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ ہر وقت اپنے آپ کو نامعلوم خطرات میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ شاہ جہاں نے فوری طور پر آصف خان کے ذریعے خانِ خان کو ایک خط بھیجا جس میں تحریر کیا گیا تھا، ماں بدولت تجھے یا تیرے لڑکے کو کسی قسم کی سزا نہیں دینا چاہتے، اس لیے تم دونوں پر لازم ہے کہ آگرہ میں آزادانہ زندگی بسر کرو۔ اس خط کے آخر میں شاہ جہاں کے دستخط بھی موجود تھے۔ شہنشاہ کی طرف سے یہ ایک واضح یقین دہانی تھی، مگر خانِ جہاں کے دل سے شبہات دور نہ ہو سکے۔ وہ مسلسل شاہ جہاں کی نیت پر شک کرتا رہا۔ بظاہر اس نے دربار میں حاضر ہونا شروع کر دیا تھا، لیکن درپردہ وہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ آصف خان کے جاسوس ہمہ وقت خانِ جہاں کی حرکات پر نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ شاہی جاسوسوں نے خانِ جہاں کے تیور پہچان لیے اور فوری طور پر آصف خان کو اطلاع دی کہ خانِ جہاں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ آصف خان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شاہ جہاں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، شاہ والا، اگر بروقت انتظام نہیں کیا گیا تو خانِ جہاں فرار ہو جائے گا۔ یہ محض شبہ ہے اور ہم شبے کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ شاہ جہاں نے آصف خان کو جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے اسے معافی دے دی ہے اور ہم کسی واضح ثبوت کے بغیر اپنے وعدے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب خانِ جہاں کوئی غلطی کرے اور پھر ہم سختی کے ساتھ اس کا محاسبہ کریں۔ آخر وزیر اعظم آصف خان کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ چند دن بعد ہی خانِ جہاں اپنے 2000 افغان سپاہیوں کے ہمراہ رات کے وقت آگرے سے فرار ہو گیا۔ فرار کی اطلاع ملتے ہی شاہی فوجوں نے اس کا تعاقب کیا۔ خانِ جہاں کے گھوڑے کی رفتار بہت تیز تھی، وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ شاہ جہاں کے سپاہی بھی برق رفتاری کے ساتھ خانِ جہاں کا تعاقب کر رہے تھے۔ انجام کار شاہی فوجوں نے دریا چمبل کے قریب مفرور سپاہیوں کو جا لیا۔
शाही फौजों और खाने जहां के सिपाहियों के दरमियान पहले झड़प धौलपुर के करीब दरिया चंबल के किनारे हुई। इस तसादुम में शाही फौजी दस्तों को नुकसान उठाना पड़ा। खाने जहां ने सबसे पहले अपने लड़कों और सिपाहियों के साथ तेज रफ्तार नदी को उबूर कर लिया, मगर अपना खजाना पीछे छोड़ गया। यहाँ झज्जर सिंह के लड़के बिक्रमाजीत सिंह ने खाने जहां के साथ ताउन किया और उसे बंदेलखंड के आसान और करीब तरीन रास्तों पर डाल दिया। इस तरह वो अहमदनगर होता हुआ दौलताबाद जा पहुंचा। निजामुल मुल्क ने बड़ी गर्मजोशी के साथ खाने जहां का इस्तकबाल करते हुए उसे आला तरीन ओहदा भी दिया। इसके बाद उसे और उसके साथियों को मुगल मकबूजात फतह करने की इजाजत भी दे दी। दिसंबर 1629 में शाहजहां खुद आगरा से दक्कन रवाना हुआ। जनवरी 1630 में शाही फौजों ने बालाघाट पर हमला कर दिया, मगर खाने जहां के हाथों उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस नाकामी के बाद शाहजहां ने पेशकदमी रोक दी और बरसात गुजर जाने का इंतजार करने लगा। बारिशों के मौसम में जंग करना एक कार्य अबस था जिसमें नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। मजबूरन शाहजहां ने अपने मंसूबे में तब्दीली की और बड़े सब्र ज़ब्त के साथ ये नाखुशगवार मौसम गुजार दिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। उस वक्त शाहजहां के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो खाने जहां के अलावा अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंडा की हुकूमतों से भी जंग करने के लिए मजबूर था, क्योंकि ये तीनों हुकूमतें मुगलों के खिलाफ थीं। दूसरी तरफ मरहट्टों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इन्हीं दुश्वारियों के पेश नज़र शाहजहां ने कुछ फौज ख्वाजा अबुल हसन की निगरानी में धौलिया की तरफ रवाना की, ताकि इस तरह न सिर्फ शिमाल मगरिब की तरफ से अहमदनगर को मुतासिर किया जा सके, बल्कि रसद का सिलसिला भी बरकरार रहे। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद बरार के जुनूब में देवल गांव के करीब मुतय्यन कर दी गई, ताकि मौका पड़ने पर शिमाल मशरिक से हमला किया जा सके। कुछ फौज रियासत हैदराबाद के शिमाल की तरफ वाक़े तेलंगाना के इलाके में भेज दी गई। इस दौरान मरहट्टों ने मुगल इक़्तिदार को तस्लीम कर लिया और अपनी मसनूई वफादारियां जाहिर करके चंद ओहदे भी हासिल कर लिए थे, मगर उनका सरदार जादो राय मुनाफिकाना हिकमत अमली से काम ले रहा था। एक तरफ वो मुगल सल्तनत की हिमायत का दम भरता था और दूसरी तरफ अहमदनगर की हुकूमत से भी ताल्लुकात कायम रखना चाहता था। यही वजह थी कि जादो राय के लड़कों और रिश्तेदारों ने अहमदनगर के हाकिम की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। जादो राय समझता था कि वो अपनी दोगली सियासत से हिंदुस्तान के हुक्मरान को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया है, मगर शाहजहां उसकी नीयत का हाल खूब जानता था। शाहजहां एक अरसे से जादो राय की ताक में था। फिर जैसे ही शाही कारिंदों को मौका मिला, उन्होंने जादो राय को गिरफ्तार करके शाहजहां के सामने दरबार में पेश कर दिया। शाहजहां ने उसे इस हाल में देखकर पूछा, जादो राय, तूने हमारी नवाजिशात की कदर न की। शाहवाला, मेरे दुश्मनों ने मुझ पर संगीन इल्जाम तराशी की है। जादो राय लरजते हुए लहजे में बोल रहा था, मैं जानता हूं कि यहाँ हासिदों की एक बड़ी जमात मौजूद है जो ये पसंद नहीं करती कि मुझ गरीब पर शाहवाला की तरफ से इनायत खुसरवाना की बारिश हो। तुझसे कोई हसद नहीं रखता जादो राय। शाहजहां ने इंतहाई कहरनाक लहजे में कहा, तू अपना दुश्मन आप है, बैक वक्त दो कश्तियों पर सवार होना चाहता है। ऐसे लोगों का अंजाम इसके सिवा कुछ नहीं कि वक्त का तुंदो तेज तूफान उन्हें गर्क कर दे। अगर तू हमारे इल्तफातो करम को काफी समझता तो आज तुझे ये स्याह दिन देखना न पड़ता। जादो राय अपनी मौत को करीब से देखकर गिरिया उजारी करने लगा। मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी वफादारियां शुबहात से बालातर हैं। फिर तेरे लड़के और दूसरे रिश्तेदार अहमदनगर के हाकिम की गुलामी पर रजामंद क्यों हैं? शाहजहां एक मुतहम्मिल मिजाज इंसान था, मगर उस वक्त उसकी जबान से आग बरस रही थी। क्या उन लोगों के लिए हमारी गुलामी काफी नहीं थी? अगर तू अपने सीने में मालो दौलत की हिर्स रखता था तो हमसे कहा होता। हम तेरे सारे खानदान के फैले हुए दामन सीमो जर से भर देते। मुझे सिर्फ एक मौका दिया जाए। जादो राय गिड़गिड़ाने लगा, मैं अपने लड़कों और तमाम रिश्तेदारों को लाकर शाहवाला के कदमों में झुका दूंगा। दानिशमंदों का कौल है कि जो शख्स बार बार एक ही जाविये से फरेब खाए उसे दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। शाहजहां ने जादो राय की रहम की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा, वफादारियों के इम्तिहान का वक्त गुजर चुका, अब तो सिर्फ हमारा आखिरी फैसला बाकी है। हमने बहुत दिन इंतजार किया कि तू सच्चाई के साथ मरकज की तरफ पलट आए। ये मोहलत महज इसलिए थी कि हम अच्छी तरह तेरी मुनाफिकाना फितरत का अंदाजा कर लें। हम नहीं चाहते थे कि उजलत में हमारे हाथ से किसी बेगुनाह का खून हो जाए। जादो राय मौत के खौफ से शाहजहां के सामने सजदे में गिर गया, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। शाहजहां ने जादो राय के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। फिर जब मरहट्टा सरदार का जिस्म तड़पते तड़पते साकत हो गया तो कुछ मुशीरों ने शाहजहां को मशवरा देते हुए कहा,
शहनशाह के लिए लाजिम है कि ऐसे गद्दारों की मौत की भरपूर तशहीर की जाए। शाहजहां सवालिया नजरों से अपने मुशीरों की तरफ देखने लगा। नमक हराम जादो राय का सर काटकर नेज़े पर बुलंद किया जाए और फिर इसे गली कूचों में फिराया जाए ताकि इन लोगों को इबरत हासिल हो जिनके सीनों में गद्दारी के नापाक जज्बात परवरिश पा रहे हैं। शाही मुशीरों ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, अगर जादो राय के सर की तशहीर कराई जाए तो इससे हुकूमत के जाहो जलाल में इजाफा होगा। जादो राय के लिए बस मौत की सजा काफी थी, हम किसी संगदिली का मुजाहिरा नहीं कर सकते। शाहजहां ने अपने मुशीरों की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, दीगर शाहाने हिंद ने भी बगावतों को कुचलने के लिए यही तरीक़ेकार इख्तियार किया है। मुशीरों ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा, एक जीते जागते इंसान के लिए यह सजा बहुत है कि वो जिंदगी से महरूम हो जाए। शाहजहां ने अपने मुशीरों का कोई मशवरा कबूल नहीं किया और जादो राय की लाश उसके वारिसों के हवाले कर दी गई ताकि वो अपने मजहबी रिवाज के मुताबिक मरने वाले की आखिरी रस्में अदा कर सकें। फारी तौर पर जादो राय की मौत का ये असर जाहिर हुआ कि मरहट्टे मुगलों के साथ शामिल हो गए। अगरचे ये शमूलियत भी मुनाफिकाना थी, लेकिन शाहजहां ने कुछ दिन के लिए मरहट्टों की शोरिशों से निजात हासिल कर ली थी। जादो राय का फितना खत्म हो चुका था। अब शाही लश्कर आजम खान की सालारी में आगे बढ़ रहा था। उस वक्त खाने जहां बैर में मुकीम था। जब उसे आजम खान की आमद की खबर मिली तो उसने बैर छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर खाने जहां की रवानगी से पहले ही आजम खान ने थोड़ी सी फौज उसके ताक़ुब में रवाना कर दी थी। खाने जहां ने इस मुख्तसर सी फौज को हमला करके मुंतशिर कर दिया, लेकिन जैसे ही खाने जहां के हमलावर लश्कर ने बाकी मांदा शाही फौज को आते हुए देखा तो उसके सिपाहियों में अफरा तफरी फैल गई। अब खाने जहां पीछे हटने के भी काबिल न था, क्योंकि उसके तमाम रास्ते शाही फौज ने मसदूद कर दिए थे। मजबूरन उसने जंग करने का फैसला किया। सबसे पहले खाने जहां ने अपने तमाम खवातीन को एक महफूज मकाम पर भेज दिया और फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। खाने जहां और शाही लश्करों के दरमियान एक खूनरेज मार्का हुआ। बागी फौजियों ने बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी थी। खाने जहां के वफादार सिपाहियों ने शमशीरों पर अपनी गर्दनें रख दी, मगर जानू के ये नजराने भी काम न आए। शाही फौज की यलगार को रोकना खाने जहां के बस में न था। आखिर उसे मैदान जंग से फरार होना पड़ा। मुगल सिपाहियों ने बहुत दूर तक बागियों का ताक़ुब किया, लेकिन उनके घोड़े तेज रफ्तारी के बायस बहुत जल्द थक गए। खाने जहां अपने चंद सिपाहियों और हरम के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। आजम खान ने अपने फौज को कदरे आराम की मोहलत दी और दोबारा खाने जहां का ताक़ुब शुरू कर दिया। खाने जहां एक और अफगान सिपासालार दरिया खान के साथ जगह जगह पनाह की तलाश में भटकता रहा। अहमदनगर के हुक्मरान ने खुद को कलाबंद कर लिया था। दूसरी तरफ वक्त की रफ्तार देखते हुए जादो राय के कत्ल के बाद उसके दामाद शाहजी भोंसले ने अहमदनगर से ताउन खत्म कर दिया था और फिर उसने अपनी खिदमत शाहजहां को पेश कर दी। शाहजहां की तरफ से इस पेशकश को बखुशी कबूल कर लिया गया। बागियों ने एक बार फिर दरिया खान को कुछ फौज देकर चंदौड़ और 40 गांव भेजा, जहां अफगानों ने खाने पीने की चीजों के हुसूल की गरज से लूटमार शुरू कर दी। इस दौरान उसे इत्तला मिली कि अब्दुल्ला खान को उसके ताक़ुब की हिदायत की गई है। आजम खान ने अहमदनगर के किले का मुहासरा जरूरी न समझा, बल्कि उसकी जगह बागियों के एक और इत्तेहादी मुकर्रब खान की फौजों पर हमला करने का इरादा कर लिया। मुकर्रब खान उस वक्त बालाघाट के शिमाल में था। जैसे ही शाही अफवाज वहां पहुंची, अहमदनगर की फौजें बैर की तरफ पसपा हो गईं। फिर जब आजम खान ने उनका ताक़ुब शुरू किया तो वो दौलताबाद की तरफ फरार हो गईं, लेकिन वहां भी उन्हें अशियाए खुरोनोश की कमी के बायस सुकून नसीब ना हो सका। इस दौरान आजम खान ने शाहजी भोंसले को अहमदनगर के मगरबी और शिमाली इलाकों पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। अहमदनगर के हुक्मरान ने ज़रूरियात ज़िंदगी की नायाबी और खुद को दुश्मनों में घिरा हुआ पाकर खाने जहां की मदद से हाथ रोक लिया। इसके बाद खाने जहां और दरिया खान मालवा के रास्ते पंजाब में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। यहाँ से उन्हें सरहद के अफगानों की हिमायत हासिल होने की उम्मीद थी। शाहजहां उस वक्त बुरहानपुर में मुकीम था। उसने उन दोनों का ताक़ुब करने के लिए फौरी तौर पर नए अहकाम जारी कर दिए। इसके नतीजे में खाने जहां और दरिया खान को कदम कदम पर शाही फौजों से मुकाबला करना पड़ा। मजबूरन उन दोनों ने एक बार फिर बंदेलखंड में पनाह हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बिक्रमाजीत को अपने बाप झज्जर सिंह का अंजाम याद था। शाही इताब से बचने के लिए बिक्रमाजीत सिंह ने बागियों पर हमला करके दरिया खान और उसके बेटे को हलाक कर दिया। खाने जहां एक बार फिर बच निकला, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद सिहोंदा के मुकाम पर शाही फौजों और बागियों के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई। इस खूनरेज मारके में खाने जहां मारा गया। जब शाहजहां को यह खबर मिली तो उसने बेपनाह खुशी का इजहार किया। इन तवील मारका आराइयों में हुकूमत के बहुत से बागी मौत की खुराक बन गए थे।
शाहजहां ने सुकून की सांस ली, मगर एक और अलमनाक खबर उसका इंतजार कर रही थी। शहजादा औरंगजेब ने मुबारक शाह कलंदर की शख्सियत का खासा असर कबूल किया था। वो अक्सर मुबारक शाह की खिदमत में हाजिर होता और घंटों कलंदर की बातें सुनता रहता। ये बात बड़ी हैरतनाक थी कि मुबारक शाह किसी शख्स से गुफ्तगू नहीं करता था। अगर कभी उसे कुछ कहने की जरूरत महसूस होती तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में बात करता, वरना आमतौर पर खामोश ही रहता। इसके बरक्स शहजादा औरंगजेब पर बहुत ज्यादा मेहरबान था। वो अपनी आदत के खिलाफ उससे तवील गुफ्तगू किया करता था। गुज़श्ता कई दिन से शहजादा औरंगजेब मुबारक शाह की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका था। इस दौरान कलंदर ने कई बार ज्ञानी आत्माराम से पूछा, शहजादा क्यों नहीं आया? ज्ञानी आत्माराम ने अदब के साथ सर झुका दिया। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? कलंदर कुछ देर तक ज्ञानी की तरफ देखता रहा और फिर बड़े अजीब लहजे में कहने लगा, आज शहजादे को आना ही चाहिए। उसे खबर नहीं कि मुझे कितने काम हैं। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आत्माराम ने आज से पहले कलंदर को इतना बेचैन नहीं देखा था। तो फिर मैं क्या खुद शहजादे की खिदमत में चला जाऊं? ज्ञानी ने घबरा कर कहा। हाँ, यही बेहतर होगा आत्माराम, मुबारक शाह कलंदर ने पुरजोश लहजे में कहा। कौन जाने शाही महल में शहजादे को कितनी मसरूफियात हों। इस सूरत में यही मुनासिब रहेगा कि तुम खुद चले जाओ। आत्माराम फौरन ही उठ खड़ा हुआ और झोंपड़ी से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। ज्ञानी आगरे की एक मशहूर शख्सियत था। इस्लाम लाने के बाद उसकी शोहरत में मजीद इजाफा हो गया था और लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे थे। ज्ञानी को इस तरह पैदल चलते हुए देखा तो लोग उसके करीब आकर सूरत हाल दरियाफ्त करने लगे, मगर ज्ञानी उन्हें एक ही जवाब देता, इस वक्त मुझे किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। मैं कलंदर का एक खास पैगाम लेकर शाही महल जा रहा हूँ। फतेहपुर सिकरी से किले का फासला 17-18 कोस के करीब था। अगर एक बूढ़ा शख्स मुसलसल चलता रहता तो सुबह से शाम हो जाती, फिर कहीं जाकर वो शाही महल तक पहुंच पाता। आत्माराम रास्ते की दुश्वारियों से वाकिफ था, लेकिन वो महज कलंदर के हुक्म की बजावरी के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद ज्ञानी की नजर एक शाहसवार पर पड़ी। वो सिपाही उसी तरफ आ रहा था। जब शहसवार करीब आया तो आत्माराम ने उसे आवाज दी। सिपाही ने घोड़े की लगामें खींच ली और नीचे उतर पड़ा। सिपाही आत्माराम से वाकिफ था। ज्ञानी, तुम इस तरह कहाँ जा रहे हो? आत्माराम ने मुख्तसरन उसे पूरी रुदात सुनाते हुए कहा, मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगता, मगर कलंदर का पैगाम बरवक्त पहुंचाना भी जरूरी है। ये मेरे लिए बड़ी सादत होगी कि मैं कलंदर बाबा की हकीर से खिदमत अंजाम दे सकूं। सिपाही ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में कहा, तुम मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ, फिर ये तवील सफर बहुत आसानी से तय हो जाएगा। ज्ञानी आत्माराम उस सिपाही के साथ घोड़े पर सवार हो गया और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद आत्माराम किले के दरवाजे के सामने खड़ा था। किले के पहरेदार आत्माराम से बखूबी वाकिफ थे। शहजादा औरंगजेब से कहो कि उनके लिए मुबारक शाह कलंदर का एक जरूरी पैगाम है। आत्माराम ने एक पहरेदार सिपाही को मुखातिब करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ही किले में एक हलचल सी मच गई। औरंगजेब खुद दौड़ता हुआ किले के दरवाजे पर आया और आत्माराम को अपना मुंतजर पाकर हैरत ज़दा लहजे में बोला, ज्ञानी, बाबा खैरियत से तो हैं? हाँ, वो खैरियत से हैं, मगर आपकी मुसलसल गैर हाजिरी के सबब वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। फिर मेरे लिए बाबा का क्या हुक्म है? औरंगजेब ने घबरा कर पूछा। वो आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। आत्माराम ने कहा, मुनासिब है कि आप आज ही उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैंने कलंदर को इतना बेकरार कभी नहीं देखा। फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, औरंगजेब ने कहा और फिर उसी तरह दौड़ता हुआ किले में वापस चला गया। जब शहजादा दोबारा बाहर आया तो सादा लिबास में मलबूस था। मुहाफिज दस्ता फौरन आगे बढ़ा। साहिब आलम, आप इस तरह फतेहपुर सीकरी नहीं जा सकते। पहले आप मुसल्ला हों और फिर मुहाफिज दस्ते की निगरानी में तशरीफ ले चलें। हम किसी मुहाजे जंग पर नहीं, एक मर्द कलंदर की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। शहजादा औरंगजेब ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में अपने मुहाफिजों को मुखातिब करते हुए कहा, ये बाबा मुबारक शाह की तौहीन होगी कि हम उनकी खिदमत में शाहाना अंदाज से हाजिर हों। हमारे लिए सख्त अहकाम है कि साहिब आलम किसी वक्त भी तन्हा न रहें। एक मुहाफिज ने आगे बढ़कर सर झुकाते हुए कहा, सूरत हाल के मखदूश होने के सबब हमा वक्त आपकी निगरानी जरूरी है। हमारी मुहाफिज हकीकी सिर्फ खुदावंद जुलजलाल की जात है। शहजादा औरंगजेब ने बेनियाजी का मुजाहिरा करते हुए कहा। वो फितरतन एक इंतहाई शजा नौजवान था। दारुल हुकूमत के लोग अब तक वो खौफनाक मंजर नहीं भूले थे जब हाथियों की एक लड़ाई में शहजादा औरंगजेब की जिंदगी को संगीन खतरा लाहिक हो गया था। उस वक्त शाहजहां और दूसरे उमरा के दिलों की धड़कनें बेरब्त हो गई थी जब एक मस्त हाथी शहजादा औरंगजेब पर झपट पड़ा था। उस वक्त औरंगजेब की उम्र मुश्किल से 12-13 साल होगी। देखने वालों का ख्याल था कि चंद लम्हों में वो बिगड़ा हुआ मस्त हाथी औरंगजेब को कुचल कर रख देगा।
अक्सर लोगों ने तो शिद्दत खौफ से अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, मगर अचानक सूरत हाल बदल गई।